नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साकले आपका साकले टेक ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत करता हूं। यह मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ है जिसमें हम कोर जावा पढ़ेंगे। यह इस सीरीज़ का 6th वीडियो रहेगा और 6th वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जेवीएम आर्किटेक्चर के फर्स्ट मॉड्यूल क्लास लोडर सबसिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास लोडर सबसिस्टम कंसिस्ट 3 phases. First is loading, second is linking, and third is initialization. First we will understand how the classes will load into the runtime memory. Whenever JVM executes a program, when it comes across a class, first it will check that class is already loaded in the method area or not. If that particular class is already loaded in the method area, JVM is continue to execute the program. Otherwise, it will go and forward the request to the class loader subsystem to load that particular class and related classes. When class loader subsystem forward that request to load the class, the request come in first phase, which is loading phase. In that loading phase, there are 3 class loader present. First is bootstrap class loader, second is extension class loader, and third is application class loader. This all Java class loader is an abstract classes which is present in the java.lang package. It loads classes from different resources. Java class loader is used to load the classes at runtime. These all 3 class loaders loads the different classes from the different locations. Now we will understand how that request to load the classes goes in the loading phase. When a JVM forward the request to the class loader subsystem, class loader subsystem first delegate the request to the application class loader, which is a child class loader. Application class loader don't load the class. First it will delegate that request to their parent class loader, which is an extension class loader, and then extension class loader is also a child class of parent class loader, which is a bootstrap class loader. Bootstrap class loader first will check in their path that this class is present in their path or not. If the required particular class is present or stored in their path, it will immediately load that class, and if that class is not present in their path, it will delegate that request to their child class loader, which is an extension class loader. Then extension class loader will check that the required particular class is present in their path or not. If the class is present in their path, extension class loader will load that class, and if the class is not present or stored in their path, it will delegate that request to their child class loader, which is an application class loader. Now lastly, application class loader will check that class is present in their path or not. If the class is present in the application class loader path, class will loaded by the class loader. This all the process is based on the delegation hierarchy algorithm. Now we will see a scenario in that when this all the class loader is unable to load the class and the required particular class is not present in the all that 3 class loaders path. Immediately that class loaders generate an exception, which is a class not found exception, which is a runtime exception. Java class loader is based on 3 principles, which is delegation, visibility and uniqueness. Delegation property हमने देख ली क्या होती है। इसमें क्लास लोडर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं किसको, अपने पेरेंट क्लास लोडर्स को। अगर पेरेंट क्लास लोडर के पाथ में रिक्वायर्ड पर्टिकुलर क्लास स्टोर नहीं होगी, तब वो पेरेंट क्लास लोडर जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है उसे अपने चाइल्ड क्लास लोडर को डेलीगेट कर देगी, मतलब फॉरवर्ड कर देगी। फिर वो चाइल्ड क्लास अपने पाथ पे चेक करेगी कि रिक्वायर्ड पर्टिकुलर क्लास स्टोर है या नहीं है। अगर उसके पाथ में स्टोर रहेगी तो वो लोड कर देगी, नहीं तो अपने चाइल्ड क्लास लोडर को वो रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा, मतलब फॉरवर्ड कर देगा। तो ये होती है डेलीगेशन प्रिंसिपल, डेलीगेशन प्रॉपर्टी। नाउ वी विल सी सेकंड प्रॉपर्टी, विच इज
visibility property. Visibility property what says? It says it allows a child class loader to see all the classes loaded by a parent class loader, but the parent class loader cannot see the classes loaded by the child class loader. क्या मतलब है इसका? विजिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई पेरेंट क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करता है तो उसके जो चाइल्ड क्लास लोडर है वो देख सकते हैं कि इस क्लास लोडर ने कौन सी क्लास लोड की है। लेकिन अगर जब कोई चाइल्ड क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करता है तब पेरेंट क्लास लोडर उस क्लास को देख नहीं सकता कि कौन सी क्लास चाइल्ड क्लास लोडर ने लोड की है। Now we will see uniqueness property. Uniqueness property allows to load a class once. It achieves by delegation principle. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पेरेंट क्लास लोडर के पाथ में कोई सेम नाम की क्लास फाइल सेव है, मीन्स हम ले लेते हैं एक स्टूडेंट डॉट क्लास नाम से एक क्लास फाइल सेव है बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में और एक्सटेंशन क्लास पाथ में। तो जब क्लास लोडर सब सिस्टम क्लास लोड करने की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तब एप्लीकेशन क्लास लोडर के थ्रू उसके पेरेंट क्लास लोडर मतलब एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। एक्सटेंशन क्लास लोडर के पाथ में स्टूडेंट डॉट क्लास स्टोर है बट वो उसे लोड नहीं करेगा। क्लास को लोड करने की फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट क्लास लोडर के पास रहती है जो कि है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, और उसके बाद आता है एक्सटेंशन क्लास लोडर और लास्ट में आता है एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो रिक्वेस्ट पहले जाएगी बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर पहले चेक करेगा कि मेरे पास में पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड क्लास स्टोर है या नहीं। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के एक पाथ में स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल स्टोर है तो वो उस क्लास को लोड कर लेगा, स्टूडेंट डॉट क्लास को लोड कर लेगा। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ने उस क्लास को लोड कर लिया लेकिन स्टूडेंट क्लास फाइल एक्सटेंशन क्लास लोडर के पाथ में भी सेव है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि एक्सटेंशन क्लास लोडर उस क्लास फाइल को लोड नहीं कर पाएगा। तो ये होती है यूनिकनेस प्रॉपर्टी। नाउ वी विल मूव towards the second phase of class loader subsystem, which is a linking phase. Linking phase consists three activities like verification, preparation and resolution. वेरिफिकेशन एक्टिविटी में क्या चेक होता है कि जो लोडेड बाइट कोड है वो वैलिड कंपाइलर के थ्रू जनरेट हुई है या नहीं। अगर वैलिड कंपाइलर के थ्रू जनरेट हुई है तो वेरीफाई हो जाएगा और सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म होगी जो कि है प्रिपरेशन। लेकिन अगर वैलिड कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड जनरेट नहीं हुआ है जो कि क्लास लोडर के थ्रू लोड किया गया है, मीन्स किसी हैकर के थ्रू उसमें मैलिशियस कोड ऐड कर दिया गया है, इट मीन्स वेरिफिकेशन में वो वेरीफाई होगा और उसमें मैलिशियस कोड ऐड मिलता है, तब बाइट कोड वेरीफायर रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करेगा which is a java.lang.verify error. Now we will move toward the second activity which is a preparation activity. प्रिपरेशन एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें JVM क्लास लेवल स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कराता है और डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कराता है। लाइक स्टैटिक इंट वेरिएबल के लिए 0, स्टैटिक फ्लोट एंड डबल वेरिएबल के लिए 0.0 और बुलियन के लिए फॉल्स एंड ऑब्जेक्ट के लिए नल। Now we will see last activities of linking इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक तरह की प्रोसेस है जिसमें सभी सिंबॉलिक रेफरेंसेस जो कि प्रोग्रामर के थ्रू प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं उन्हें ओरिजिनल डायरेक्ट रेफरेंस में रिप्लेस कर दिया जाता है। लाइक हियर इज़ अ कोड जिसमें हमने टेस्ट नाम से क्लास बनाई है, मैन मेथड दी है और मैन मेथड के अंदर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, स्ट्रिंग और स्टूडेंट टाइप के। पूरे प्रोग्राम में हमने 3 क्लास यूज़ की है। पहली टेस्ट क्लास जो कि प्रोग्रामर के थ्रू बनाई गई है, दूसरी स्ट्रिंग क्लास जो कि कोर जावा एपीआई लाइब्रेरी में स्टोर रहती है, और थर्ड है स्टूडेंट टाइप की क्लास जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामर के थ्रू बनाई गई है और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ में स्टोर होगी जो कि एप्लीकेशन क्लास लोडर के थ्रू लोड की जाएगी। ये प्रोग्रामर के थ्रू यूज़ किया गया सिंबॉलिक रेफरेंसेज है, मीन्स ये टेस्ट क्लास जो लिखी है, स्ट्रिंग क्लास और स्टूडेंट क्लास, ये सिंबॉलिक रेफरेंसेज है जो कि प्रोग्रामर के थ्रू यूज़ किए गए। अब रिजोल्यूशन फेज में इन्हें ओरिजिनल डायरेक्ट रेफरेंस में रिप्लेस किया जाएगा जो कि होता है
टेस्ट डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट क्लास। इस प्रोसेस को कांस्टेंट पूल भी कहा जाता है। हमने क्लास लोडर के पाथ नहीं देखे हैं, तो मैं आपको क्लास लोडर के पाथ बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का पाथ होता है JDK JRE लीव में RT.jar फाइल। यहाँ पे सभी कोर जावा API रिलेटेड क्लासेस प्रेजेंट होती है। मीन्स प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं, ये सभी कोर जावा API रिलेटेड क्लासेस है। और सेकेंड है एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक्सटेंशन क्लास लोडर का पाथ होता है JDK में JRE, JRE में लीव में ext.jar। यहाँ पे हम सभी एक्सटर्नल API यूज़ करते हैं। लाइक किसी डाटाबेस को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए किसी API का यूज़ करना, तो यहाँ पे उस तरह की क्लासेस यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन क्लास लोडर में प्रोग्रामर के थ्रू जनरेट की गई डॉट क्लास फाइल स्टोर रहती है, और वो होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ चेक करना बताया है, तो आप जाके लिंक में चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड फेज ऑफ क्लास लोडर सबसिस्टम विच इज़ अ इनिशियलाइजेशन फेज। इस फेज में दो टास्क परफॉर्म होते हैं। पहला, सभी क्लास लेवल स्टैटिक वेरिएबल्स को उनकी ओरिजिनल वैल्यू असाइन की जाती है, जो कि प्रोग्रामर के थ्रू कोड में लिखी गई होती है। और दूसरा, सभी स्टैटिक ब्लॉक्स को टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करते हैं। यह हो गया क्लास लोडर सबसिस्टम का डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन। एक बात और, अगर इन तीनों फेज में लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन फेज में कहीं भी एरर अकर होती है, so we will get a runtime exception which is a java.lang.linkage error. This exception is generated in runtime, okay, and it also consists of subclass error which is a java.lang.verify error. verify error कब जनरेट होगी? जब वाइट कोड वेरीफायर कंपाइलर के थ्रू जनरेट वाइट कोड को वेरीफाई करेगा। अगर वो वैलिड कंपाइलर के थ्रू जनरेटेड नहीं होगी, तब यह वेरीफाई एरर जनरेट करेगा रन टाइम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरियस मेमोरी एरियाज पढ़ेंगे, जो कि सेकंड मॉड्यूल है JVM आर्किटेक्चर का। थैंक यू।